Yes, dear students, how is everyone? Yes, fine. Okay, good. Now you must be enjoying this winter season, no? Okay, if you remember, till now we have discussed, human eye. Human eye के बारे में हमें defect of human eye we have discussed, not disease, defect of human eye. And before that we have discussed lenses and one more, glass lab. Glass lab lenses. So lens is there in human eye also, ना? तो this means refraction जो है, it also take place in human eye, no? And human eye refraction, first refraction, and most of the refraction, it takes place at cornea. And we know that lenses में हम बात कर रहे थे तो convex lens has positive focal length, concave lens has negative focal length, concave lens has negative focal length. ऐसे ही concave mirror has negative focal length and convex mirror it has which focal length? Positive focal length. Okay. And in glass lab we have discussed that refraction take place. And how many times refraction take place in glass lab? Twice. एक बार जब enter करती है ray and second when it comes out from the glass lab. And there is a relationship between emergent ray and incident ray. है ना? Emergent ray is always parallel to the original path of incident ray. And what is the relation between angle I and E in glass lab? I and E are always equal. And the distance, perpendicular distance between original path of ray of light and emergent ray is known as lateral displacement. We have discussed. Today we are going to discuss a new device. Okay, that is also made of glass. एक नई चीज, okay, glass lab के साथ साथ glass lab हम कर चुके हैं. Today we are going to discuss another device made of glass only, made of glass, but it is triangular in shape. Yes, you have got the answer. That is prism. तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज प्रिज्म को. तो सबसे पहले बात आती है कि सर प्रिज्म है क्या? ग्लास लैब तो हो गया. व्हाट इज ए प्रिज्म? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ प्रिज्म? इस तरह से स्टेप वाइज हम चलेंगे, है ना? स्टेप वाइज चलेंगे. तो इसको रब कर दें. I इक्वल टू E. तो ये ध्यान रखेंगे, I इक्वल टू E की बात करिए. यहां हम कॉर्नर में लिख देते हैं I is equal to, this is I is equal to angle E. This is in glass lab. Angle of incidence is always equal to angle of emergence in glass lab. इसमें हम देखेंगे प्रिज्म में कि this angle of emergence होता है नहीं होता, या कौन सा दूसरा एंगल आ रहा है. We shall be comparing. Okay. So first of all, what is a prism? तो प्रिज्म जो है, देखिए, it is made of glass and it is bounded by two refracting surfaces. Two refracting surfaces, and these two refracting surfaces are, yes, at a certain angle. एक एंगल पर inclined होते हैं. These two refracting surfaces are inclined at an angle. तो डेफिनेशन भी हम लिखेंगे. उससे पहले थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं. The diagram which I am going to make is 3-dimensional diagram. First 3-dimensional, उसके बाद में दूसरे डायग्राम पे आएंगे. Okay. So I am drawing the diagram and you can see how to draw the diagram. So first of all, ये हमारा triangle हो गया. Yes. This is A and this is B and this is C. और यहां से हमने देखिए इस तरह से ये लाइन किया और इसके पैरेलल ये हो गया हमारा लाइन. Okay. Then we join these two lines. Yes, A, B, C and this is D. और यहां से देखिए हम एक पॉइंट यहां लेंगे. ये से हमें इसका बेस बनाना है कि कितना थिक है बेस. ओके. एंड इसको हम यहां से ज्वाइन करते हैं. ये धीरे धीरे ज्वाइन करा एंड दिस इज ज्वाइन टू, यस. ओके. एनी प्रॉब्लम? ये कर लिया होगा आपने. एंड दिस इज ज्वाइन टू. तो ये डायग्राम, इस तरह के डायग्राम अपने मैथमेटिक्स में बनाए होंगे जब क्यूब बनाते हैं या क्यूबॉइड बनाते हैं, नो.
So this is here A, B, C, D, and this is E, and this is F. So here this is the three-dimensional figure of prism, and it is made of glass. So it has one refracting surface. इसका एक refracting surface ये है. This is one, and this is the second refracting surface. Second refracting surface. Light इधर से enter करती है prism में, and then from this side it comes out. And ये जो angle होता है, this is called angle of prism. Okay, angle of prism, or we call it prism angle. Angle of prism. Angle of prism. जनरली ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है 60 डिग्री और 45 डिग्री का. तो इन फिजिक्स लैब जनरली इन स्कूल्स वी फाइंड अ प्रिज्म ऑफ एंगल 60 डिग्री. ओके, उसमें जो एंगल होता है हमारे जो फिजिक्स लैब में जो प्रिज्म मिलते हैं उनमें एंगल ये होता है कितने डिग्री का? 60 डिग्री का एंगल होता है. ओके, एनी प्रॉब्लम हियर? नो. The light will enter through this refracting surface, will come out through this refracting surface, and this is all glass. तो glass से निकल के आएगी. Refraction will take place how many times? 2 times refraction will take place. Okay. So definition हम दोबारा बोल रहे हैं, लिख लीजिए. What is a prism? Right now, it is a transparent refracting material. Transparent refracting material because it is made of glass, so it is transparent. It is a transparent refracting material. Medium. Sorry, material की जगह करें medium. ये medium है. Air is a medium, glass is a medium. It is a transparent refracting medium bounded by two plane surfaces. Two plane surfaces. तो दो plane surface होते हैं ना, ये इस तरह से बाउंड होते हैं और नीचे फिर ये glass. Bounded by two plane surfaces. Inclined to each other. ये दोनों plane surfaces कैसे हो? Inclined to each other at certain angle. At a certain angle. So these two plane surfaces are inclined to each other at a certain angle. Any problem here? No. चलिए. Yes. And what do we call this? ये जो है इसको थ्री डायमेंशनल, तो इसको हम कहते हैं refracting edge. Refracting edge. So we should know each and everything because now pattern of exams is changing. तो किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, तो therefore we should run after knowledge, not after marks. So we should try to get each and everything related to the topic. So I am trying to give you. चले आगे. Now after that, how does refraction take place through prism? तो उसके लिए हम बात करेंगे दूसरे डायग्राम की. तो आई एम ड्राइंग द डायग्राम. सिंपल ट्रायंगल देखिए. ये हो गया हमारा एबीसी प्रिज्म. सो एबीसी इज द प्रिज्म हियर. एबीसी इज द प्रिज्म. तो नाउ रिफ्रैक्शन बाय ए प्रिज्म. रिफ्रैक्शन बाय ए prism. How does refraction take place through a prism? तो सबसे पहले हमें इसमें एक चीज को नोट करना होगा कि when light is passing through the prism, then it also follows the laws of refraction. Okay, the light follows laws of refraction. Laws of refraction. Okay, so here or we can say that the refraction through prism. साथ साथ लिखते रहेंगे refraction of light. लाइट वर्ड छूट गया था. refraction of light through prism always follows laws of reflection. Laws of refraction. Okay, so there are how many laws of refraction? You know, there are 2 laws of refraction. ये हमने लिखा ग्लास लैब के केस पे, इससे कंफ्यूज मत होइए. So refraction by prism, the refraction of light through a prism always follows laws of
रिफ्रैक्शन, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। सो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बोथ आर फॉलोड ओके बाय रिफ्रैक्शन व्हेन इट इज टेकिंग प्लेस इन यस ग्लास प्रिज्म। तो आफ्टर दिस देखिए इसमें क्या होगा ये, तो हाउ मेनी टाइम रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस, तो रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। तो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। तो नंबर वन कब होगा, when light is going from air to glass, okay, so when light travels from air to glass, okay, जब एयर से ग्लास में जाएगी। नंबर 2, जब ग्लास में जाएगी तो ग्लास के बाहर भी निकल के आना है, फर्स्ट यू हैव टू गो टू एग्जामिनेशन रूम, देन यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द एग्जामिनेशन रूम आल्सो, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत तो पाथ में चेंज होता ही होता है ना। सो सेकेंड, लाइट कम्स आउट फ्रॉम ग्लास प्रिज्म, जब ये ग्लास प्रिज्म से बाहर निकल के आती है, मीन्स फ्रॉम ग्लास टू एयर, और वी कैन राइट डाउन सिंपली when it comes out from glass to air, तो twice refraction is taking place in prism। ये बातों को ध्यान रखना है। इन ग्लास लैब कॉमन दोनों में एक ही बात है, इन ग्लास लैब also refraction is taking twice and in prism also it is taking twice, okay, ये चीज दोनों में कॉमन है। तो नेक्स्ट चले, अब इसको डायग्राम को पूरा करते हैं, सो नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। यस डन, तो मैं रब इट नाउ, ओके, इसको रब कर देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम, एंड डायग्राम ड्रॉ करना इट इज एन आर्ट, इट इज एन आर्ट। तो आपको सीखना भी है कि डायग्राम को ड्रॉ कैसे करना है, ओके। नाउ चलिए ये हो गया। नाउ तो दिस इज वन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस इज अनदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। तो सबसे पहले हमने इस पे ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, तो दिस इज नॉर्मल हियर, ये हमारा नॉर्मल हो गया। एंड व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर दैट, उसके बाद में हमें रे ऑफ लाइट लेना है, रे ऑफ लाइट, एंड वी हैव टू रिमेंबर द एंगल आल्सो। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और जब हम आपको एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे इसका, तो देखना उसमें एंगल को भी ध्यान रखना है, कितने डिग्री का एंगल लेना। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी बिटवीन 30 to 60 डिग्री। तो यहां पर हमने एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया नॉर्मल के साथ में, एंड दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज आई आर, दिस इज आई आर इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई विद नॉर्मल। जनरली मिस्टेक इज डन बाय द स्टूडेंट्स, वो ये एंगल बना देते हैं। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो व्हेन रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो क्या होगा, चेंज इन पाथ विल टेक प्लेस, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये देखिए ऐसे जाएगी, ओके, इट विल गो दिस वे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। और यहां पर ये जो होगा, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर with normal, not with this H. This is very important point which should be kept in mind. This is a silly mistake which is generally committed by the students. एग्जाम के प्रेशर में आप गलती कर देते हैं, तो प्रेशर तो रखना ही नहीं है एग्जाम का, ओके, और आराम से करते हैं। ओके, नाउ इट हैज टू कम आउट। गिलास में है तो गिलास के बाहर जाना है, एग्जामिनेशन रूम में जाएंगे तो बाहर भी आना है, मुश्किलों में जाएंगे तो मुश्किलों से निकल के भी आता है, आना होता है और निकल के आते हैं। वी कम आउट फ्रॉम प्रॉब्लम्स, ओके। So now again change in path will take place. तो देखिए यहां पर क्या होगा, this path will change and it will go this way. Okay, and यहां पर हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री एंगल। तो यहां पर जो एंगल बनाते हैं नॉर्मल, दिस शुड बी हाउ मच, 90 डिग्री एंगल। ये डायग्राम डन। चलिए
तो डायग्राम आपका हो गया। तो ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल होगा, नॉर्मल है ना, तो ये हमने आपको बताया था दिस इज 90 डिग्री एंगल। ऐसे यहां पर ये 90 डिग्री एंगल। तो ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे एंड व्हेन इट इज प्रोड्यूस फॉरवर्ड, ये जो इंसिडेंट रे, अगर ये ग्लास प्रिज्म और ये रे कब स्ट्रेट जा सकती है? व्हेन दिस रे कैन गो स्ट्रेट, कब ये जा सकती है स्ट्रेट? एनी वन ऑफ यू, क्या रिलेशन होगा इसके और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में? तो यस, तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमने लिया है म्यू ए और इसका है म्यू जी, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये जो ग्लास है ना, ये दोनों का सेम होगा, तो रे ऑफ लाइट विल गो स्ट्रेट। तो इसमें क्या होगा? रिफ्रैक्शन विल नॉट टेक प्लेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देन दिस विल गो स्ट्रेट। तो अब ये कैसे जाएगी? ये स्ट्रेट जाना चाहिए इसको ऐसे, ठीक है। दिस इज द पाथ, दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट। ओके, अब ये देखिए इमर्जेंट रे, इट अपीयर्स, अगर इसको देखें तो इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, यस, कोई पीछे के किसी पॉइंट से आ रही है, तो इट इज प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। इसको हमने ऐसे प्रोड्यूस कर दिया एंड ये दोनों देखिए यहां मिल रही है, बोथ आर मीटिंग हियर, यस। तो ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज फॉर्म बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। तो ये जो एंगल है इसको क्या कहते हैं? तो वी आर यूजिंग द वर्ड फ्रॉम इंग्लिश दैट इज डोंट डेविएट फ्रॉम योर पाथ, कहते हैं ना। यस, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, ऑलवेज बी डिसिप्लिन्ड एंड फॉलो यस रूल्स एंड रेगुलेशंस, डोंट डेविएट फ्रॉम योर पाथ। अपने पाथ से हटना नहीं है, अपने उद्देश्यों से हटना नहीं है। तो रे ऑफ लाइट डेविएट हो गई है, अपने रास्ते से हट गई है। ओके, सो इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये मुड़ गई। तो आपको कितनी भी परेशानी आए, अपने रास्ते से, अपने रास्ते पर चलते रहना, अपने एम को लेकर रहना है ना। तो यहां पर ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो दिस एंगल between the original path of incident ray and this emergent ray when produced backward, this is called angle of deviation, and it is represented by this sign. Yes, any problem here? No. So draw the diagram, hurry up. Yes, done. चलिए, so this is angle of deviation. तो ध्यान रखेंगे, तो this is the angle formed between original path of incident ray and emergent ray when produced backward. Okay, so it is yes deviating from its path and then again reflection is taking place. अब ये बात आती है कि सर क्या ये एंगल जो है, एंगल की जो वैल्यू है, एंगल ऑफ डेविएशन, इट इज ऑलवेज सेम फॉर एनी एंगल और इट चेंजेस? ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड? यस माय डियर, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज नॉट कांस्टेंट। जैसे एंगल ऑफ इमर्जेंस कांस्टेंट नहीं होता, ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, ठीक है। ग्लास लैम्प में दोनों इक्वल होते हैं। तो सेम वे इन प्रिज्म, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, सो अब हम आगे बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन। यस, नाउ यस स्टार्ट। Now factors affecting angle of deviation. So now I'm writing here factors affecting angle of deviation. Okay, angle of deviation को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो the first factor, जो फर्स्ट पॉइंट है, that is angle of, yes, angle of कौन सा होगा?
एंगल ऑफ, हम बात कर रहे थे शुरू में कि 30 से 60 डिग्री के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए। तो फर्स्ट एंट्री आप पेपर कैसा अटेम्प्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन के ऊपर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन रूम है उससे पहले, तो फर्स्ट हमारा जो फैक्टर आता है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो फर्स्ट हमारा जो फैक्टर है विच कैन अफेक्ट ऑन विच दिस एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो देखिए कैसे, बाय एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन प्रूव्ड एंड आई शैल शो यू दिस एक्सपेरिमेंट। बाय एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन प्रूव्ड। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू इंक्रीज होता है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज 30 से 35, 40, 50, 60 करेंगे, तो फर्स्ट एंगल ऑफ जो डेविएशन होती है दैट डिक्रीजेस। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, वो डिक्रीज होता है, वो कम होते जाता है, ठीक है। फिर एक गिवन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये मिनिमम होता है, सबसे कम होगा, एंड देन इट अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग, फिर इंक्रीज करना शुरू होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए होगा, तो फर्स्ट angle of deviation decreases with angle of deviation decreases with increase in angle of incidence, angle of incidence। तो पहले ये कम होता है, इसका ग्राफ भी बना के दिखाएंगे हम, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो फर्स्ट व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको लिख लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। ओके, डन। नाउ angle of deviation decreases, then angle of deviation comes to a minimum value of angle, and then again increases, then increases, okay, then increases। तो ये एक मिनिमम वैल्यू पाता है, ओके, कम होते जाता है, अब फिर एक डेफिनेट वैल्यू तक आकर फिर इंक्रीज होने लगता है ना। तो ऐसे ही लाइफ में भी होना चाहिए, लाइफ में आप सबको स्ट्रॉन्ग बनना है। कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, ओके, कोई बात नहीं, आई हम परेशान होते हैं, देन अगेन वी हैव टू गेन स्ट्रेंथ एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो दिस वी लर्न फ्रॉम फिजिक्स, ये हम फिजिक्स से सीखते भी रहते हैं, ओके, वी कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम फिजिक्स एंड इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, ओके। एनी प्रॉब्लम हियर? Note it down. Yes, hurry up. Okay. So when for a certain value of incidence, for a given value of incidence, when angle of deviation is minimum, for a certain value or for a given value, हम बात करते हैं for a given value, when angle of deviation is minimum, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो that in that case, this is called minimum angle of deviation. Okay, उसको हम कहते हैं minimum angle of deviation. So for a given value, remember, for a given value of angle of incidence, when एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, कम से कम, उससे और कम नहीं जा सकता है ना, उससे कम और नहीं जा सकता, तो उस केस में हम कहते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो दैट एंगल ऑफ डेविएशन इज नोन एज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। और उसको हम क्या लिखते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए था, है ना, यहाँ पर। तो दिस इज एम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। एनी प्रॉब्लम हियर? ओके, here I is yes, हमने इसमें लिख दिया mm, it is minimum, mi
एन, ओके, बस एम हो गया ये, ओके, सिग्मा एम आई एन, मिनिमम एंगल। नाउ नोट इट डाउन, और उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख देते हैं। तो फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड ई, इस केस में, है ना, आई और ई में क्या रिलेशन होगा। सो हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, ऐसा किसमें नहीं था, ऐसा नहीं था किसमें, ग्लास स्लैब में, उसमें हर केस में I इज इक्वल टू E, बट हियर I इज इक्वल टू E, इसलिए हमने इसको रब नहीं किया था पहले ना। हियर इन प्रिज्म एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन इज द मिनिमम, when angle of deviation is the minimum. So this is very important point, please note it down. Okay, done. So now I am going to rub it, और उसके बाद में सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। सेकंड फैक्टर इज एंगल ऑफ प्रिज्म। So look at, and then I am going to rub it. Yes, may I rub it now? Okay. Now second is angle of prism. So this angle, ये जो angle हमारा angle of prism होता है, this is very important. So by experiment it has been observed, okay, by experiment it has been observed that angle of deviation, angle of जो deviation है, this is angle of deviation, it is directly proportional to angle of prism. तो angle of prism अगर हम increase करते हैं, ये 60 का है, and for a given value of angle of incidence, for a given value of angle of incidence, अगर हम I की वैल्यू, एंगल I को अगर हम 40 डिग्री लें, एंड अगर एंगल 60 डिग्री का है यहाँ पर, उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन को देखें, तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर हमारा आता है कितना, 20 डिग्री, ओके, एंड अगर हम ये जो एंगल ऑफ डेविएशन पहले कितना था, 60 डिग्री था, एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये लिया, एंगल ऑफ डेविएशन ये। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म हम इंक्रीज कर दें, एंगल ऑफ प्रिज्म इंक्रीज कर दें, अगर हम इसको 70 डिग्री कर दें, ओके, तो उस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ आई अगर हमारा सेम रहेगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इट विल इंक्रीज, इट मे गो 25 डिग्री और समथिंग, ये इंक्रीज हो जाएगा। ये तो हमने एक वैल्यू वैसे लिख दिया, ओके। सो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यस, एंगल ऑफ प्रिज्म, okay. So for a given angle of incidence, angle of deviation is directly proportional to angle of prism. हम यहां ऐसे लिख देते हैं, angle of deviation is directly proportional to angle of prism. Okay, any problem here? No. Good. Now third, note it down, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको रब करें। Yes, done. So I am going to rub it now. इसको रब करते हैं और इसके बाद में थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट कौन सा हो सकता है, विच कैन बी द थर्ड फैक्टर, जस्ट थिंक ऑफ इट। हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ओके, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। अब प्रिज्म है, इट इज मेड ऑफ ग्लास, तो गिलास, हमारे जो गिलास होता है, तो गिलास भी वी हैव डिफरेंट टाइप्स, ओके, डिफरेंट तरह के हमारे ग्लासेस होते हैं, एंड दे हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, दिस इज डी, ओके, डी।
चले, एनी प्रॉब्लम यार? यस, देखिए इसके हाउ डज इट डिपेंड अपॉन दिस, इसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो हेडिंग लिख लिया, इसको लिखिए। ओके, सो फॉर द गिवन फॉर द सेम फॉर द गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म सेम रहता है, एंगल ऑफ प्रिज्म सेम रहता है, सपोज इट इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस it is 40 degree. Okay, angle of prism is constant, angle of incidence is constant, and we are replacing the prism को हम replace करते हैं. Okay, crown glass, flint glass, there are different type of glasses, अलग अलग ग्लास होते हैं, है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले. Yes, so अलग अलग हम गिलास लेंगे जिनका मटेरियल अलग होगा. फ्लिंट ग्लास, ओके, देन विच ग्लास? Yes, try to recall. So flint glass का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इट इज 1.6 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, यस, एनी वन ऑफ यू, कितना होता है? दिस इज 1.52. अगर हम दो प्रिज्म ले लें, ओके, एक हमारा फ्लिंट ग्लास का, दूसरा क्राउन ग्लास का, एंड फॉर देम, ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म इज सेम, एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री रखें, तो व्हाट वी फाइंड, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, 1.6 इज ग्रेटर देन 1.52. तो देयरफॉर एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? इसके लिए कितना होगा? ज्यादा होगा. एंगल ऑफ डेविएशन विल बी मोर. सो हायर, व्हाट डू वी कम टू नो? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एंगल ऑफ डेविएशन ऐसे लिखेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, मटेरियल ऑफ प्रिज्म. ओके, मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज ग्लास. ओके, तो हायर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्रेटर विल बी द angle of deviation. So we have discussed 3 points. Note it down. Now 4th point, last point. Yes, sir. Done. चलिए. तो now last point. हम जब ग्लास लैम्प की बात कर रहे थे, तो we were talking about that we can use incident light of different colors. Okay, and आपने पढ़ा था कि lateral displacement depends on the color of the incident light. Color of the incident light means wavelength of incident light. So same thing is here also. So the last point is color of incident light, or we can say wavelength of incident light. Okay. So इसको रब कर देते हैं. So in the meantime, write down the heading: color of incident light or wavelength of incident light. Hurry up. Color of incident light or wavelength of incident light. चलिए, now last point is 4. Color of incident light, or we can say that wavelength of incident light. Okay, and we know that कितनी तरह की लाइट हमारे पास है? V, I, B, G, Y, O, R, है ना? Yes, we talk about these 7 colors of light. तो जब अगर इसमें से हम by experiment it has been proved कि अगर हम इसमें से वॉयलेट कलर का लाइट थ्रो करें, इसके ऊपर ये पास करें, एंड एक और चीज हम जानते हैं कि वेवलेंथ इस तरह से इंक्रीज होती है. ओके, वेवलेंथ ऑफ रेड वॉयलेट इज लीस्ट एंड रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है ना? तो इसमें देखिए क्या होगा. यस, तो ये लाइट ऑफ वॉयलेट कलर है, इट डेविएट्स मोस्ट. तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है सबसे ज्यादा होगा वॉयलेट के लिए. ओके, सो वॉयलेट हैज वॉयलेट का वेवलेंथ जो है, वॉयलेट का वेवलेंथ रेड के वेवलेंथ से कम है, रेड के वेवलेंथ से कम है. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द ग्लास, इट इज लीस्ट फॉर रेड कलर एंड हाईएस्ट फॉर वॉयलेट कलर, हाईएस्ट फॉर वॉयलेट कलर. तो सबसे ज्यादा डेविएशन होगा वॉयलेट कलर के लिए.
Okay, because its wavelength is least. Wavelength is least, and it will come out at last from the. It will take time to come out. सबसे बाद में आगे निकल के, है ना? तो ये इस पे रिलेशन आता है. So for इसमें write down light of violet color deviates the most and light of red color deviates the least. So we can say that deviation, angle of deviation for violet color will be less, will be more, and here angle of deviation के red color से ज्यादा होगा. Angle of deviation for violet color is more than the angle of deviation of red color. सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट कलर की लाइट का होगा जब इसको सेम एंगल, अगर हम रेड के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम रखें, वायलेट के लिए, ब्लू के लिए, अलग अलग कलर्स के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ प्रिज्म दोनों कांस्टेंट रखें, तो डेविएशन इज मैक्सिमम इन वायलेट लाइट एंड मिनिमम इन रेड लाइट. ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर. ओके, एक और चीज सेम रहना चाहिए, आई ए एंड मेटीरियल मींस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये तीनों चीजें सेम रहे. ओके, सो टुडे वी हैव डिस्कस रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द डेविएशन. आई एम श्योर you must have enjoyed. If you enjoyed, then do share it with others. And same thing you will be getting in class 12 also. So sharing is knowledge. Okay, and keep saving water for the interest of nation, and we have to take care of our future generations also. We can take care कैसे ले सकते हैं? कुछ बचा करके. Okay, and बिना पैसे के हम बचा सकते हैं. Without spending any money, we can save water or we can save environment also. Thank you very much to all of you.